Good morning, students. In last class, we discussed about SQL functions. First, math function, in which we studied about power function used for power, and another is round and truncate function as a math function. So, round function for round of decimal digit, truncate function to remove out the digits from a number. Then next, we start for string or text function. String or text function में आपके थे वहाँ पे. So usually go for length function to calculate length of a string. Then another is uh, mid slash substring slash str substr. So these are extract out a string, small string or substring from a string. तो substr ये functions हमने पढ़े थे वहाँ पे text और string based functions में. तो three categories दी generally SQL functions में. First category is used for math function, power function जो power to calculate power of any number, power function. Second is round function. Third is truncate function. These are math function. That means that these functions are applied on numeric values. Second function जो हमने study किया था वहाँ पे, तो second function जो आपने study किया है वहाँ पे, that is a part of string function or text function that will be applied on text or so text function. तो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट डेट फंक्शन. डेट फंक्शन में देखिए आपके फर्स्ट फंक्शन जो कर डेट है, दिस विल ओनली डिस्प्ले द करंट डेट. तो करंट डेट डिस्प्ले करेगा. तो somewhat like that, select current date, this will display the system current date. तो करंट डेट डिस्प्ले करेगा ओनली डेट नॉट द टाइम. तो टाइम डिस्प्ले नहीं करने वाला है ये यहाँ पे. तो दिस विल डिस्प्ले अ करंट डेट, ओनली डेट नॉट द टाइम. So select current date. That current date function return value in 4 time wise the hyphen 2 time m dash okay 2 time d. So current date only returns the date in the format of 4 time y the hyphen 2 time m hyphen 2 time d. तो डबल डी वहाँ पे. So आपको ध्यान रखना है वहाँ पे यही फॉर्मेट ये फॉलो करता है. So next function is now will return the current date and time, both date plus time दोनों ही डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज sys date. This will also display current date and time. So sys date and current date. So मैं I use select star sys date and then brackets semicolon enter. This will display date and time both. Next is date. To extract out date from a date and time expression. Date और time में से अगर date find out करनी है तो use date. If we want to extract only month, so month from a date, so we can also go for month and date. फिर extract out only year from a so sys date is used to find out, used to return current date and time. So you can use now or sys date for returning. So you can also use now for current date and time, per date for only time a date. So both are sys date and now contain same data, that means date and time both displayed by sys date and now. So now and sys date both display date and time. Date भी display करता है साथ में time भी, but case of per date only date. So ये चीज ध्यान रखनी है आपको. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई टेबल में डेटा दे रखा है, उसमें टाइम भी है, आपको डेट एक्सट्रैक्ट करिए, तो आप डेट यूज करें वहाँ पे. डेट देन मंथ टू एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम अ डेट, देन ईयर फ्रॉम अ डेट. फिर डे नेम था लास्ट क्लास में, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, तो हम डे नेम यहाँ तक थे. फिर अगर आपको डेट में से फाइंड आउट करना है डे ऑफ मंथ,
You can also find out, तो मुझे लिखना है select for displaying data from a so day of month, day of month, month का टोटल 0 30 31 वैल्यूज होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई ईयर पास कर रहा हूँ 2021 07 टुडेज डेट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू एंटर टुडेज डेट एंटर, तो डे ऑफ मंथ इज 10 क्योंकि आज 10 तारीख है तो फर्स्ट से स्टार्ट करता 31 जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 तो टुडेज डेट इज 10, तो डे ऑफ मंथ इज 10, तो अगर मैं 31 लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस 31, अगर इन प्लेस 32 लिखता हूँ, दिस विल गो फॉर नल क्योंकि 32 डेट नहीं होती है आपके कोई मंथ में, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। डे ऑफ वीक यू कैन फाइंड आउट 7 डेज होते हैं वहां पे 1 2 3, तो इस तरह डे ऑफ वीक भी कैलकुलेट कर सकते हो, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, नल 32 तो नल होगा 10 आज का, तो 7 दैट मींस सैटरडे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 0 1 to 3 और सैटरडे इज 7, तो संडे 1 मंडे 2 ट्यूसडे 3 ऑन वर्किंग, सो इस तरह से आपके वर्क करता है। फिर डे ऑफ ईयर, अगर टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 365, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 दिस विल कैलकुलेट द डे इन अ ईयर, तो उसका कौन सा डे है यहाँ पे, जैसे मैं टुडे डेट देता हूँ तो डे ऑफ वीक के बाद में डे ऑफ ईयर, तो आज है 191 आउट ऑफ 365 191 डे है आज, तो इस तरह से डे भी कैलकुलेट करता है। तो आपके पास फंक्शंस है बहुत सारे, यू कैन गो फॉर दिस फंक्शंस, these are, अब देखिए लास्ट क्लास में भी डिस्कस अबाउट लेंथ फंक्शन टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब आता है नेक्स्ट फंक्शन जो है कॉनकैट, जो हमने डिस्कस नहीं किया था, मैं लास्ट क्लास में कहता हूं कॉनकैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट, कॉनकैट कॉनकैटिनेशन करता है, ये क्या करता है आपके ऐड एडिशन और जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपको अगर ऐड करना है यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और आपको उसके साथ में स्ट्रिंग 2 ऐड करना है string 2, you can use concat function to join these two strings, और ये 2 में दो strings पे वर्क करता है, जैसे मुझे यहाँ पे name 1, जैसे राम कुमार नेम है मेरे पास, राम एंड कुमार, तो राम कुमार, राम, there is no space between Ram and Kumar, so if you want to apply space तो हमें यहाँ पे अलग से एक स्पेस देना, either I left space before the second string or you can go for this or left a single space in a string, this will left single space between Ram and Kumar, तो इस तरह से वर्क करता है। समटाइम्स अगर कॉलम से आपके पास टेबल में लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, तो यूज स्टूडेंट 1 select star from club सेमीकोलन एंटर, कोच नेम और एज मुझे अगर कॉलम ज्वाइन करना है यहाँ पे, तो आई हैव टू राइट इन सेलेक्ट concatenation of two columns, coach name comma age, if I want to add these two columns, this will add or join two columns data, coach name with age, Kukrija age is 35, Ravina age is 34 and Karan age is 34, so these are the age of particular coach, so you can go for that. Lower for lower conversion of uppercase string into lowercase string, uppercase or uppercase upper or uppercase will convert small case letters into uppercase or capital letters. Then left or right will exit out as number of characters from left or number of characters from right. Then altrim, rtrim, and trim will remove spaces from a string. A leading spaces, that means from left hand side अगर आपको spaces remove करने हैं तो altrim, that means left trim, और राइट हैंड साइड से अगर आपको स्पेसेस रिमूव करने हैं तो आर ट्रिम, अगर दोनों साइड से स्पेसेस रिमूव करने हैं देन ट्रिम फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने सबस्ट्रिंग सबस्ट्र मिड दिस विल एक्सिट आउट
a सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, आपके पास बड़ी स्ट्रिंग है, सेंटेंस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, वी गो फॉर सब स्ट्रिंग और सब str और मिड। अब लास्ट है आस्क की str सेलेक्ट। आस्क की str क्या करेगा, हर एक जो स्ट्रिंग, जैसे कोच नेम का मुझे आस्क की फाइंड करना है, कोच नेम फ्रॉम क्लब, सो कोच नेम में जो भी वैल्यूज हैं आपके, जैसे कोच नेम है कुकरेजा, कैपिटल के से स्टार्ट करता है, तो कैपिटल के की आस्क की वैल्यू देगा, बाकी यू के आर ए जे की वैल्यूज नहीं दे रहा है। तो ये आस्क की वैल्यू, क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है ओनली, कंप्यूटर गो फॉर ओनली 0 एंड 1 लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज। सो तो ये जो भी आप वर्ड्स नंबर्स आप देते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं, दैट ओनली saved in computer in the form of 0 and 1। तो ये आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, दैट इज कन्वर्टेड टू न्यूमेरिक फॉर्म, एंड न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उनको वो 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आस्क की वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है 75 का जो भी आस्की कोड होगा 0 1 की फॉर्म में, उसमें उस फॉर्म में आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो कोच नेम कॉलम पे आस्की वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बट ये आस्की वैल्यू ओनली फर्स्ट लेटर की दे रहा है, पूरे कुकरेजा नेम की नहीं दे रहा है आस्की लेटर, आस्की सिर्फ ओनली वैल्यू ऑफ के। तो मैं कोच नेम के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, कोई भी डबल कोट का कैरेक्टर देता हूँ, सी स्मॉल सी, दिस विल डिस्प्ले आस्की वैल्यू फॉर 99 फॉर स्मॉल सी। अगर कैपिटल सी देता हूँ, कैपिटल सी 67, ये स्मॉल एबीसी से स्टार्ट करता है, स्मॉल ए 96 97 98 99 से 97 फॉर स्मॉल ए बी सी डी, इस तरह से 96 97 98 99 इस तरह से वर्क करता है। और तो कैपिटल ए से स्टार्ट करता है 65 65 66 67 68 69 70 71 अप टू इस तरह से। और आपकी अगर मुझे जीरो का लेना है तो डबल कोट पे जीरो का डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो जीरो इज 48 से स्टार्ट करा, तो 1 वहाँ पे 49, 2 वहाँ पे 53 वहाँ पे। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का आस्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। स्विच ऑफ करके देख लो, अनइंस्टॉल करो वापस। सो इस तरह से आपको आस्क की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आस्क की वैल्यू ऑफ सर्टेन स्ट्रिंग्स जो भी है। So last class we have discussed about round function, power function, and truncate function. These three are numeric function, that means math function. Then there are certain functions used by string or text functions. Then date and time function for used to find out date and time. Next, we go for aggregate function. So two types of functions are available in SQL. First is scalar function, another is aggregate function. Scalar function only single value के regarding single result देगा वहाँ पे, but aggregate function will include multiple values and produce single result. जैसे sum, average, आपके count function used to minimum, maximum only give one output. तो वन वैल्यू आउटपुट देगा, बट मल्टीपल वैल्यूज आपके इनपुट में लेता है इन केस ऑफ आपकी। देयर आर 5 फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम एंड काउंट। रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम, मिनिमम विल रिटर्न मिनिमम वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम। अगर कॉलम आप स्पेसिफाई करते हैं तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। एवरेज विल कैलकुलेट एवरेज ऑफ द वैल्यूज अंडर द स्पेसिफाइड कॉलम, उस कॉलम में से एवरेज कैलकुलेट करेगा। Second, sum will calculate sum of the values under the specified column or expression. Or count will count the number of values under the specified column or expression. तो ये आपके काउंट करेगा वहां पे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेबल था आपके पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब। तो इसमें अगर मुझे यहाँ पे पे को सम करना है तो आई गो फॉर सेलेक्ट सम, देन कॉलम का नेम पे, ब्रैकेट फ्रॉम टेबल क्लब।
दिस विल प्रोड्यूस सम पे, कॉलम की हेडिंग हो गया, जो फंक्शन आपके सिलेक्ट में जो भी फंक्शंस का नेम या कॉलम के नेम होते हैं वो कॉलम की हेडिंग बनती है। और एग्जाम में आपको आउटपुट जब भी मेंशन करते हैं तो विद हेडिंग जो भी फंक्शन है सिलेक्ट के बाद में और फ्रॉम से पहले जितने भी कॉलम के नेम है वो टेबल की हेडिंग्स बनेगी और फिर आपकी वैल्यूज वर्क करेगी। सो सम पे फ्रॉम क्लब, तो 4200 सम आ गया। वहां पे अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो मिन, यू कैन गो फॉर मिन, मिनिमम फाइंड करेगा। इफ यू गो फॉर मैक्स, अब हम एक टेबल, छोटी सी टेबल बनाता हूं मैं। सेलेक्ट क्रिएट टेबल, टेबल नेम व्हाटएवर, example1, और उसमें दो कॉलम में कर रहा हूँ इंटीजर, कॉलम का नेम नेम varchar 20, create table for filtering table, then table का नेम example1, first column name varchar 20, कॉमा, फिर यहाँ पे है मार्क्स इंटीजर में, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम example1, वैल्यूज, फिर वैल्यूज आपको देनी है जो भी वैल्यूज है, नेम राम कॉमा 20, मार्क्स आफ्टर 20, सेमीकोलन, एंटर, रमेश, और उसने एग्जाम नहीं दिया, आई एम गोइंग टू स्टोर नल वैल्यू ओनली, देन सुरेश 15 मार्क्स, राघव 5 मार्क्स ओनली, राजेश 12 marks only. Then वापस select star to display record in a table from club, table name example1, ex1. These are the value in a table example1, that is Ram marks 20, Ramesh null, no value for Ramesh, Suresh 15, Raghav 5 and Rajesh 15 at 12. So I want to perform sum on column marks. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम मार्क्स जो है आपके, वहां पे नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। 52 कैलकुलेट कर रहा है तो 12, 20 प्लस 15 प्लस 5 30, और 30 और 12, 30 मतलब 20 प्लस 20 40 और 12 52 सम कैलकुलेट, बट नल इज नॉट इंक्लूडेड। अगर नल को आपके ऐड करता साथ में तो नल प्लस 52 इज नल, तो नल सबको नल बनाता है। बट इन केस ऑफ एग्रीगेट फंक्शन आप मिनिमम मैक्सिमम आइदर यूजिंग सम फंक्शन एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, वो नल को कंसीडरेशन में नहीं लेता है, वो ओनली काउंट कर रहे हैं 4, देयर आर 4 वैल्यूज। अब देखिए मैं नेक्स्ट, अगर इन प्लेस ऑफ सम आई राइट मिन, ये मिनिमम फाइंड आउट करेगा बट नल को मिनिमम में नहीं लेगा। अब नेक्स्ट मैक्स लेगा तो भी मैक्स को भी मिनिमम में काउंट नहीं करेगा। मिनिमम मैक्स और मिन मैक्स सम हो गया। अब एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवीजी एवरेज में भी देखेंगे 15 डिवाइड बाय 4, टोटल वैल्यू इज 5, काउंट नहीं कर रहा है। 15 डिवाइड बाय 4, 52 डिवाइड बाय 4 इज 13, तो 4 वैल्यूज ही काउंट करता है, नल को इंक्लूड नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जब एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो 4 जो फंक्शन है यहाँ पे मिन मैक्स एवरेज एंड सम, नल को काउंटिंग में, एडिशन में, समेशन में या एवरेज में काउंट नहीं करता है, उसके लिए नल को एक्सक्लूड कर देते हैं, नल काउंटिंग में नहीं है। जब एवरेज कर रहा है तो नल को काउंटिंग में नहीं ले रहा है, दैट मींस देयर आर 4 वैल्यूज, और 4 वैल्यूज के रिगार्डिंग ही वो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, तो 5th वैल्यू के रिगार्डिंग वो एवरेज कैलकुलेट नहीं कर रहा है। सो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि 5th वैल्यू के लिए नहीं कर रहा है तो नहीं करना। अब आता है काउंट फंक्शन। काउंट एक होता है काउंट स्टार, दैट मींस काउंटिंग नंबर ऑफ रोज फ्रॉम अ टेबल, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 5, अगर मैं काउंट भी करता हूं
जैसे सिलेक्ट स्टार करते हैं, वापस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ex1 एंटर करता हूँ, तो टोटल नंबर 5 rows in a set, that means total number of rows are 5. तो count star will count number of rows from a table. तो टेबल में कितनी rows सारी, अगर but in case of either I write count marks, अगर पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई करता है काउंट फंक्शन तो ओनली काउंट करता है 4, दैट मींस नल को काउंटिंग में नहीं ले रहा है। तो जहां पे भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, अगर आपके वैल्यूज में कहीं पे भी नल एग्जिस्ट करता है, यानी रो कंटेन नल वैल्यू, तो उसको कंसीडरेशन में नहीं लेगा काउंट फंक्शन भी। तो ये 5 फंक्शन जो है नल को काउंट नहीं करते। बट इन केस ऑफ काउंट स्टार, दैट मींस रिकॉर्ड को काउंट कर रहे हो, नंबर ऑफ रोज को काउंट कर रहे हो, उस केस में क्योंकि नेम के अंदर देखो रमेश लिखा हुआ है, नेम इज रमेश, बट मार्क्स इज नल, दैट मींस मार्क्स नॉट अवॉर्डेड बाय एनीबॉडी। तो किसी ने मार्क्स को अवार्ड नहीं किया, इधर उसने एग्जाम नहीं दिया है। तो दो थिंग है, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल चीज है यहाँ पे, सम, एवरेज, मिन और मैक्स नल पे अप्लाई नहीं होता है। काउंट अगर फंक्शन सिंगल कॉलम पे अप्लाई करते हो, वहां पे भी वो काउंट को, नल को काउंट नहीं करता है, नल को काउंटिंग में नहीं लेता है। बट इन केस ऑफ अगर काउंट स्टार करते हो, दैट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। टेबल में आपके नंबर ऑफ रोज को काउंट कर रहा है। बट इन केस तो काउंट 4 अगर कॉलम पे कर देते हो, काउंट मार्क्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है काउंट स्टार और काउंट मार्क्स, कोई भी कॉलम का नेम देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू। एक का रिजल्ट आएगा, काउंट स्टार का रिजल्ट आएगा, वो काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू नल है, बट कहीं ना कहीं तो उसके उस रो में रिकॉर्ड्स में आपके वैल्यूज है। तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हो गए सारे। नेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम। आपके एक्सप्रेशन हो सकता है वहां पे, यू कैन फाइंड आउट नेक्स्ट वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम से फाइंड आउट करना है। वहां पे यूज मिनिमम, एवरेज कैलकुलेट करना टू फाइंड द एवरेज वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम, दिस गो फॉर एवीजी। देन सम कैलकुलेट करना है टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम एक्सप्रेशन, तो यू कैन गो फॉर देन काउंट, काउंट इज बेस्ड ऑन काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। तो काउंट स्टार अगर बात आती है, तो व्हेन द काउंट आर्गुमेंट इज अ कॉलम नेम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम, to return the number of non null value in a column। जब आपके कॉलम काउंट फंक्शन में हम कॉलम का नेम देते हैं या एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम देते हैं, then that will count non null values only, नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज को ही काउंटिंग में लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। बट इन केस ऑफ आर्गुमेंट अगर आप काउंट स्टार लिखते हैं, देन काउंट फंक्शन विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज satisfying the condition, if any in the table, that will read। So count star will count the number of rows satisfying the condition। अगर condition है वहां पे, then it will go for condition, otherwise आपके condition को consideration में नहीं लेगा। तो यही बात बता रहा है एग्रीगेट फंक्शंस एंड नल वैल्यूज। एग्रीगेट फंक्शन जो है आपके नल वैल्यू को इग्नोर करता है। तो नल इज सिंपली इग्नोर्ड बाय ऑल द एग्रीगेट फंक्शन। आइदर काउंट फंक्शन है वो भी इग्नोर करता है इन केस ऑफ कॉलम, आइदर मिन मैक्स, काउंट एवरेज एंड सम, सारे फंक्शन जो है काउंट नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। सो नल वैल्यू को कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, एग्रीगेट फंक्शन एंड नल फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ओवर सेट ऑफ वैल्यू। तो नल वैल्यू आर एक्सक्लूडेड व्हाइल एवीजी एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड। तो कहीं पे भी अगर हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ क्वेरी, तब आपकी ये सारे जो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन विल एक्सक्लूड नल वैल्यूज को एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। अगर सम भी करते हो, तो अगर सम नल को अगर हम सम करते हैं कॉलम में कहीं वैल्यू नल है, सो टोटल सम का रिजल्ट भी नल आ जाएगा इन केस अगर नल को एक्सक्लूड नहीं करता है। बट नल का मतलब कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू असाइन ही नहीं हुई है, उसको कंसीडरेशन में नहीं लेना है, अदरवाइज नल सबको नल बना देता है। सो select sum और कॉलम का नेम आइदर एक्सप्रेशन फ्रॉम EMP, टोटल रिजल्ट आ जाएगा वहां पे, सम, सैलरी, मिनिमम, इस तरह से काउंट सेल। तो आपको कंसीडरेशन में यही लेना है कि एग्रीगेटिव फंक्शन, ये 5 फंक्शन जब आप यूज करते हो तब नल को कंसीडरेशन में नहीं लेता है। बट इन केस ऑफ काउंट स्टार, वो नंबर ऑफ रोज काउंट कर रहा है, न कि नंबर ऑफ रोज इन अ कॉलम काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल काउंट कर रहा है इन केस ऑफ काउंट स्टार। बट इन केस ऑफ काउंट कॉलम का नेम, then this will count a number of
डेटा या रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर कॉलम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो कॉलम का नेम अगर आप गिवन देते हैं वहां पे क्वेश्चन में, तो देन इट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम। कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उनको ही कंसीडरेशन में लेता है। अगर आपने काउंट स्टार लिखा है देन वो पूरी टेबल को कंसीडर करता है कि टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी है, हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल में कितनी रोज है वो काउंट स्टार विल रिटर्न 5 रिटर्न कर रहा है। बट देखिए सैलरी कॉलम को अगर काउंट स्टार करते हैं देयर विल बी 3 रिजल्ट, क्योंकि दो वैल्यू नल है तो उसको कंसीडरेशन में नहीं ले रहा है व्हेन काउंटिंग सैलरी सेल कॉलम, काउंटिंग वैल्यूज इन अ सेल कॉलम। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल चीज है बट टफ आप ही बनाओगे। next class we discuss about group by, order by, having clause, and joins. Next class we discuss about order by, group by, and having clause. तो उससे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टेबल्स इन अ टेबल, नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल्स अभी यूज। अभी तक आपने 11th में वी ओनली यूज सिंगल टेबल फंक्शन, तो सिंगल टेबल पे हमने सारा वर्किंग परफॉर्म किया, टू टेबल्स को हमने कंसीडरेशन में नहीं लिया, ना क्रिएट किया, हमने प्रैक्टिस भी नहीं की। बट अब हम जो कुछ क्वेरीज करेंगे वो जनरली टू टेबल से बेस्ड होगी। तो फर्स्ट हम ग्रुप ऑर्डर बाय, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग क्लॉज, और उसके बाद में हम कंसीडर करेंगे जॉइंस, और जॉइन जहां पे कंसीडर करेंगे वहां पे टू टेबल्स की क्वेरीज होगी। तो वी गो फॉर टू टेबल्स, एंड टू टेबल्स इज बी टू और मोर देन टू टेबल्स, क्योंकि आपके सिलेबस में है वहां पे, वी मस्ट स्टडी अबाउट दैट। तो जॉइंस की बात करेंगे, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, फॉरेन की फिर यहीं पे कंसीडरेशन आ गई, फॉरेन की, रेफरेंशियल, यूनियन, कंस्ट्रेंट्स जो भी आपके हैं, कंस्ट्रेंट्स आप हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास। constraint supported by SQL, first is primary key, set a column or group of column as primary key in a table, और in a table एक ही column और set of column becomes a single primary key होगी in a table, single table में एक ही primary key होगी। और condition क्या होती है primary key की, for primary key condition क्या होती है, null or duplicate values are not accepted in a primary key column। अगर कॉलम का हमने प्राइमरी की कॉलम बनाया है, वहां पे सेट किया एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की, दैट मींस एम्प्लॉय आईडी कॉलम विल कंटेन नो डुप्लीकेट वैल्यूज, नॉट नल वैल्यूज। तो ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वहां पे, ना ही आपके नल वैल्यूज होगी, कोई भी कॉलम की वैल्यू आप एम्प्टी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। देन नॉट नल, दैट मींस उस कॉलम को आपको नॉट नल करना है जहां पे वैल्यूज मस्ट है, जिसमें वैल्यू एंटर करना मस्ट है, वहां पे कंडीशन डालते हैं नॉट नल, अदरवाइज वो उस फील्ड को लेफ्ट कर देता है। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ स्टार वाले फील्ड होते हैं, फील्ड्स होते हैं वहां पे, तो स्टार वाले फील्ड कंपलसरी होते हैं, यू हैव टू एंटर द डेटा इन द स्टार वाले फील्ड में, और जो नॉन स्टार होते हैं वो ऑप्शनल है, कंपल्सन नहीं है, इफ यू वांट टू फिल यू कैन। सो फॉरेन की देन data will accepted in this column if same data value exists in column in another table। तो फॉरेन की बताऊं कैसे वर्क करता है, कि वो वर्क करता है कि एक टेबल की जो है आपके फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की वाला कॉलम अगर दूसरी टेबल में रेफर कर रहा है, दैट बिकम्स अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। दूसरी टेबल में वो सेम कॉलम अगर मैं यूज कर रहा हूं तो दैट बिकम अ फॉरेन की। द सेम डेटा वैल्यू एग्जिस्ट इन कॉलम इन अनदर रिलेटेड टेबल, सेम डेटा कॉलम की बात कर रहा है, सेम कॉलम दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों टेबल्स के अंदर, तो एक टेबल में तो वो होगा प्राइमरी की, एंड अनदर टेबल अगर मैं यूज कर रहा हूं दिस बिकम अ फॉरेन की। दिस अदर टेबल रिलेटेड टेबल नेम एंड कॉलम नेम आर स्पेसिफाइड बाय क्रिएटिंग द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। देन यूनिक, अगर पर्टिकुलर कॉलम को आपको यूनिक बनाना है, वहां पे वैल्यूज उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज साइन नहीं करनी है, बट नल ये एक्सेप्ट करता है। यूनिक अगर आपने बना दिया कि नेम यूनिक, नेम वैरकैट 20 यूनिक, तो नेम कॉलम में आपकी सारी वैल्यूज यूनिक होगी, बट नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा। फिर ई नेम, सेट ऑफ वैल्यू एज अ कॉलम डोमेन, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज देता है, यहाँ पे रेंज दे देते हैं कि ये वैल्यूज आप यूज करनी है। देन सेट defines a set of values as column domain, any value in this column will be a subset of a set only। उसके अलावा हमने पढ़ा था आपके चेक कंस्ट्रेंट भी पढ़ा था वहां पे,
उसी पर्टिकुलर कॉलम पे हमें चेक कर, जैसे मार्क्स कॉलम में है, मिड टर्म है, टर्म टेस्ट है, वहाँ पे 20 मार्क्स का अगर पेपर होता है, 20 से ज़्यादा कोई भी जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो मार्क्स एंटर नहीं करता है। वो चेक कंस्ट्रेंट्स भी हम अप्लाई करते हैं। In next class we are going for order by, then group by और फिर हैविंग क्लॉज। तो ऑर्डर बाय जिस तरह से वर्क करता है सेम एज ग्रुप बाय विल वर्क। ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डरिंग परफॉर्म करता है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा करता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉलम, और पूरी जो भी कॉलम के बेसिस पे आपको अरेंजमेंट करता है। जैसे नेम कॉलम पे आपने काउंट ऑर्डर बाय करके ऑर्डर बाय नेम, तो उसके बेसिस पे नेम कॉलम के बेसिस पे आपके असेंडिंग ऑर्डर दैट मींस अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर देगा। अगर डिसेंडिंग लिखता है डी ई एस सी, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट मींस लोअर जेड से स्टार्ट करेगा अप टू ए तक अरेंज कर देगा। तो इस तरह से ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डरिंग ऑफ टेबल डेटा या रोज बेस्ड ऑन